Okay, students, we are starting our class. Okay, sir. First of all, I'm telling you the basic operations of mathematics. Essential. Essential circuit. Basic operations of mathematics, which are called the binary operations. They are plus addition, subtraction, minus. Addition plus subtraction minus multiplication. This one, and the division. This is the symbol for division. So these are the four binary operations in mathematics. Binary operation means they are applied between the two numbers. Binary means between the two numbers. We will add the two numbers, we may subtract the two numbers, we will multiply the two numbers, we will divide the two numbers. So therefore they are called the binary operations. Now order of operation. If all the operations are present or some of them are present over there in an expression, so how we will do these operations, which will be मेरे done को समझ first, में नहीं आ रहा which will be done first. The first, that is called the board mass. We will apply these operations according to this rule, which is called the board mass. B for brackets, B for bracket, O for off. Off is just like the multiplication. B for bracket. So first of all, we will operate the brackets. First of all, we will operate the brackets. Then off. Off is just like the multiplication. For example, we will say half of 4. Half of 4. That means 1 upon, half means 1 upon 2 of 4 is multiplied by 4. 1 upon 2 multiplied by 4. What will be the half of 4? Will be 2. 2 is half of 4. So off is just like the multiplication. Then we do the division. Then we do the
division. After that, the multiplication. First, we will operate the brackets. Then we will operate off. After that, the division, then multiplication, and addition and subtraction. Addition and subtraction. BODMAS rule is used for the order of the operations. Which will be done first, which will be done second, which will be done third, which will be done fourth, which will be done fifth, etc. So first of all, we will operate the brackets if there is. Then we will use off. We will operate off if there is. Then division. After division, we will do the multiplication. And after multiplication, we will do the addition and then the subtraction. These are the rules. This is the order of operations which will be done first. For example, I am doing an example. Shaista Zahid. जमील भाई जी, yes, okay. सर ये जो बॉट मार्क्स का रूल है ओ जो होएगा वो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वाला होएगा, डिवीजन के अंदर 1/4 होएगा। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ जी सर। ऑफ का मतलब ऑफ जो है दैट इज वो मल्टीप्लिकेशन की तरह ऑपरेट होती है। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन उसी तरह ऑफ। ऑफ को हटा के उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू। लेकिन अगर ऑफ और मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑफ पहले होगा, वो भी है उसी तरह, लेकिन उसको पहले ऑपरेट करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट करेंगे। ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ साथ होंगे तो पहले हम ऑफ करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले ये ब्रैकेट्स को करेंगे जी। अगर ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा, और अगर सर ब्रैकेट ना हो तो फिर बाकी जो भी होगा वो उसी ऑपरेट होगा। अगर सिर्फ ऑफ है और एडिशन है तो पहले ऑफ कर लेंगे फिर एडिशन कर लेंगे फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ये भी ठीक है, सही है सर। ठीक है। तो जो भी इसमें दिस इज नॉट नेसेसरी ऑल द ऑपरेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन। व्हाटएवर बी द operations are present in the expression, we will do according to this rule. If bracket is present, so bracket will be done first. If bracket is not present, division and addition present. So first we will do the addition, then we will do the first we will do the division, then we will do the addition. It is not necessary all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, all 6 operations are present in an expression. Not necessary. Maybe 2 or 3 or 4. So, but they will be operated according to this order. They will be operated according to this order. So, bracket will be done before of division, multiplication, addition, subtraction. Before all of these, bracket will be done. जी सर बी से ब्रैकेट हो गया, डी से डिवीजन हो गया, एम से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए से एडिशन हो गया, एस से सब्ट्रैक्शन हो गया। जी। ओ से क्या आ रहा है? ऑफ बेटा बार बार बता रहा हूँ, ऑफ ये लिखा हुआ भी है। ओ एफ ऑफ। ऑफ कौन सा फंक्शन होता है सर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ऑफ कौन सा फंक्शन होता है? बता चुका हूँ ना, मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ का मतलब। सर वो तो मल्टीप्लिकेशन अलग से भी लिखा हुआ है। अगर अलग से होगा लेकिन पहले होगी अगर या ऑफ डिवीजन पहले होगी, पहले ये बता दें सर। पहले डिवीजन होगी फिर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सर ओ तो पहले लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ
हो तुम समझ नहीं रहे, अगर ऑफ होगा तो वो पहले होगा डिवीजन से। अगर ऑफ लिखा हुआ, अगर सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो वो डिवीजन के बाद होगी। अगर ऑफ लिखा हुआ है वो भी मल्टीप्लीकेशन की तरह है, लेकिन वो डिवीजन से पहले होगा। सर बार मतलब क्या बार है? बता रहा हूं कि ऑफ अगर लिखा मतलब हुआ है, मतलब को छोड़ दो, ऑफ लिखा हुआ है तो उसको हम हटा के मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसको पहले कर देंगे। अगर ऑफ लिखा हुआ है कहीं पर तो वो और डिवीजन भी है मौजूद, दोनों मौजूद हैं, तो फिर हम ऑफ को पहले कर देंगे। ऑफ को जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, ऑफ को मल्टीप्लीकेशन की तरह ऑपरेट करेंगे, उसको पहले कर देंगे, फिर डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। बस ये सिंपल सी बात है। ऑफ लिखा हुआ होगा कहीं पर, ऑफ, ओ एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ लिखा हुआ होगा, उसको पहले करना है डिवीजन से, लेकिन ब्रैकेट के बाद करना है। सिर्फ उससे पहले ब्रैकेट ही हो सकता है, ऑफ से पहले। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर हम ऑफ को सबसे, और ऑफ मौजूद है तो सबसे पहले हम ऑफ को करेंगे। Remember, all of you, off is operated just like the multiplication. जिस तरह मल्टीप्लीकेशन ऑपरेट होती है इसी तरह ऑफ ऑपरेट होगा, लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ होगा तो उसको हम पहले करेंगे। We will do off first and multiplication later. You just remember, off is operated just like multiplication, but if off is written, not the multiplication, so off will be done first and multiplication later. Or if normal multiplication, ordinary multiplication is written over there, so that will be done after division. Multiplication, ordinary multiplication, cross, if it is written over there, that will be done after division. But if off is written over there, that will be done before division. Off will be, उर्दू में बता तो दिया बेटा, ऑफ पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ पहले होगा, डिवीजन बाद में होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन है लिखा हुआ नॉर्मल तो वो बाद में होगा डिवीजन के। यहाँ हमारे पास कुछ, हमारे पास सर एक ऐसे साथी हमारे मौजूद हैं इस क्लास में। ये स्क्रीन सही शो नहीं हो रही। स्क्रीन सही शो नहीं हो रही। सर एक क्वेश्चन है जी कहिए। जी थैंक आप यू। बड़े अच्छे लगे। जी कहिए। सर अगर 4 अपॉन 5 लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय 4 होएगा तो वो ऑफ में होएगा। 4 डिवाइडेड बाय, हमारे सर बहुत प्यारे हैं वैसे भी। 4 अपॉन 5 लिखा हुआ है और उसके आगे मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है तो वो ऑफ के अंदर होएगा। एग्जांपल के ऑफ तौर जहाँ पर लिखा होगा वहां ऑफ होगा, ऑफ नहीं लिखा हुआ तो फिर वो मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन जहाँ लिखा हुआ है वहां मल्टीप्लीकेशन। सर ये ब्रैकेट ओपन के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो वाली ऑफ है ना? ये नहीं बेटा, ऑफ लिखा हुआ होगा मेरे भाई, ऑफ लिखा हुआ होगा, ओ एफ ऑफ लिखा हुआ होगा, वो एक एग्जांपल दे दें सर, एक एग्जांपल दूंगा जी ना। सर एक आगे मुझे बढ़ने दोगे तो एग्जांपल दे दें एग्जांपल सर, अच्छा सा दूंगा। सर बढ़े सर आगे सर आगे बढ़े बेटा सर। आगे बढ़ने दोगे तो मैं एग्जांपल दूंगा ना। आगे सर छोड़िए सर आप आगे बढ़े तुम सर। अटके हुए आप ऑफ बनाए में सर, ये लोग ऐसे ही, ऑफ में ही अटके हुए हो, तब उसमें क्या एग्जांपल दूं? सही बात है सर। समझ गया सर, बहुत अच्छे हो गए। अब्दुल्ला हारून, सर आप ऑन करें, स्टडी ऑन करें। मोहम्मद हमजा मलिक, लाइबा इनायत, ओके। हेलो देखो बेटा, मैं एक बात आपको बता दूं, ये आपका पहला सेशन है, इसलिए शायद आप मेरा आपको पता भी नहीं है और ना आपको रूल्स का पता है। आप यूं समझ रहे हैं कि कॉलेज है, ये कॉलेज नहीं है बेटा। एक चीज याद रखो, अगर मैं किसी को ये हरकतें जो कर रहे हैं ना, बिला वजह की गैर जरूरी बातें कर रहे हैं या बिला वजह के वो कर रहे हैं, तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा। रिमूव हो गए तो आप फिर दोबारा ऐड नहीं हो सकते इसमें। एक दफा रिमूव हो गए तो आप वेटिंग रूम में आ भी नहीं सकते। सर, ये वाली चीज सर एक क्लियर कर दो सर। ये हो सकते हैं दोबारा ऐड, खाली आपको
स्टोरेज क्लियर करनी है और आप दोबारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सर। जी, मैं उसको दोबारा ऐड नहीं करूंगा, बल्कि उसकी 2 दिन की एब्सेंट मार्क करूंगा। ये सर बेहतरीन बात करी है आपने। कोई जो बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, गैर जरूरी बातें करेगा कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर आप बहुत बुरे लग रहे हैं, तो मैं उस बच्चे को यहां से निकाल दूंगा बेटा, रिमूव कर दूंगा, और उसको बार बार उसको मैं एब्सेंट मार्क करूंगा। और ये आपको पता है 6 अगर आपके एब्सेंट मार्क हो जाए, एक दिन में 2 सेशन होते हैं, याद रखिए, एक दिन की 2 एब्सेंट 2 प्रेजेंट लगती हैं। एक दिन में अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो या तो 2 एक सेशन अटेंड करते हैं तो आपकी 1 प्रेजेंट लगती है, 2 सेशन अटेंड करते हैं 2 प्रेजेंट लगती हैं, यानी ये हमारे 4 सेशन होते हैं ऑलमोस्ट। इसमें 2 पहले 2 सेशन की 1 प्रेजेंट या 1 एब्सेंट, और आखिरी जी 2 सर सेशन समझ की गया 1 सर, आगे प्रेजेंट और 1 बढ़ाएं आप। एब्सेंट। दूसरी बात ये कि जो हरकत करेगा, क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसको मैं रिमूव कर दूंगा और उसको पूरा दिन एब्सेंट मार्क होगी। तो 2 उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएंगी, ये समझ लीजिए, उसकी 2 एब्सेंट मार्क हो जाएंगी। जो भी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, सर अटेंड गैर जरूरी बात करेगा, तो ये याद रखिए। तो इसलिए अपने इंसान बन attend- के बैठो। सर अटेंडेंस इंसानों, लग गई। जी अटेंडेंस लग गई, तो उनको मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा। सर और मेरा ये नाम भी ऐड इसलिए कर दें। इंसान, सर बेटा मेरा जो नाम नहीं जो लिया आपने। बेटा जो आए हैं इसमें उनको मैंने जो मैं अटेंडेंस मार्क करके ही एंटर करता हूं, ऐसे नहीं होती। जब आप एंटर हो गए क्लास में, इसका मतलब ओके आप सर। आपकी अटेंडेंस लग गई। इसलिए पूछना गैर जरूरी है कि मेरी अटेंडेंस हुई या नहीं ओके हुई, सर। ये ओके पूछना सर, गैर ओके समझ जरूरी है। ओके सर, थैंक यू सर। और अगर मैं जिसको रिमूव कर दूंगा उसकी 2 दिन आप पूरे दिन की एब्सेंट मार्क करूंगा, यानी 2 एब्सेंट उसकी हो जाएंगी, और 6 एब्सेंट हुई तो वो आप वो हो गए, आपको एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं होगी, ये याद रखिए। नंबर 2, देर हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो फॉरेनर हैं, तो उनके लिए हमारा इंग्लिश, हमारा जरूरी है कि मैं इंग्लिश में लेक्चर दूं, और दिस इज द रिक्वायरमेंट। ये जब आप क्लास पीएफ कीट आपने ज्वाइन किया, तो इसका मतलब दिस इज द इंग्लिश मीडियम। हाँ, अगर तमाम हमारे पाकिस्तानी होते तो ठीक है, हम उर्दू में भी उनको समझा, उर्दू में भी बात कर लेते ज्यादा, लेकिन अब चूंकि हमारे पास कुछ फॉरेनर्स यहाँ हैं, तो इसलिए हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश में ही हम ज्यादातर वो सर एक्सप्लेन करूंगा हमारी मैं। क्लास में कोई भी फॉरेनर नहीं है सर। बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं, तुम्हें क्या मालूम, सर मुझे हम पता है ना, मेरे यूनिवर्सिटी आए पास है। थे, हमें पता है। तुम्हें क्या मालूम, तुम ऑनलाइन हो, तुम्हें क्या मालूम कौन कौन यहाँ मौजूद है, कितने मौजूद हैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी की इंग्लिश मीडियम में हमने लिख के दिया हुआ है कि दिस इज द इंग्लिश मीडियम, नॉट उर्दू मीडियम। सर ये बिजनेस मैट की बुक का नाम क्या होएगा आप? मैंने बता दिया बेटा सब कुछ। सर एक बार The book दोबारा का बता दें, नेम मैं भी नहीं था कर Essential Math for Economics and Business। बुक का नेम है ये। क्या चीज दोबारा बताना यार। उसमें आ जाएगा बेटा, एलएमएस पे आ जाएगा। और मैं दोबारा बता देता हूं, एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा भाई, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। Okay, so we are doing exercise 1.1, या मैं पहले मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं बोर्ड मास की। 4 divided by 2 plus 7 into 3 minus 5. For example, this is the example. This is an example. So first of all, we will do the bracket. So first of all, we will do the bracket. That will become 4 divided by 2 plus 7 in the bracket 3 minus 5 will be -2। minus 2.
Now we will remove the bracket. We have simplified the bracket. First of all, we'll simplify the bracket, then we will remove the bracket. 4 divided by 2 plus 7. When you remove the bracket, there is no sign in between 7 and the bracket. There is no sign between 7 and between the bracket. When you remove the bracket, it means there will be the multiplication. There will be multiplication. माइनस When 14 हो जाएगा. there is no sign, it means the multiplication. Now, first of all, now we have the 3 sign: division, addition, and multiplication. So first of all, we will do the division. First of all, we'll do the division. Okay. So division 4 divided by 2, the answer will be 2. Now plus. After division, we will do the multiplication. 7 into minus 4 will be minus 14. It will become minus 14. Plus 7 into minus 2 will be minus 14. माइनस 12 आंसर. Now we have the one Sir, side, minus 12. minus 12 is the answer. In this way, we will do the question. We will solve the problem. First, there are 3 sides: division, addition, and bracket. And within the bracket, there is minus sign. So first, we'll simplify the bracket. 3 minus 5 will be minus 2. Then we will open the bracket. 7 multiplied by minus 2. Now there are 3 signs: division, addition, and multiplication. So first of all, we'll do the division. 4 divided by 2 will be 2. Then we'll do the multiplication. 7 into minus 2 will be minus 14. So 2 minus 14 will be minus 12. 2 minus 14 will be minus 12. So this is the answer. Now we will do the exercise 1.1. सर 2 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ सर. Exercise 1.1. अच्छा भाइयों, अल्लाह हाफिज. कल मिलते हैं, मुलाकात होती है फिर. Okay. So we are doing exercise 1.1. सर अभी तो बुक नहीं है हमारे पास, तो क्वेश्चन आप बोर्ड पे रखेंगे. बोर्ड पे लिखूंगा बेटा. ओके सर.
मैं बोर्ड पे लिखूंगा और पेज भी बताऊंगा और मैं आपकी इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा। उसके बाद अब ये Thank you सेशन so Okay, much, sir. sir. Thank you, sir. ये सेशन खत्म होने वाला है। जब सेशन खत्म होगा मैं इसकी बुक भी इसके क्योंकि मजीद भी हमने करना है ये, तो मैं इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा। Thank you, sir. Thank you so much. This is exercise 1.1, page 7. Question number 1. Two x plus 3x plus 5 in the bracket 2x minus 3 is equal to 15x minus 1. So this is the left hand side, this is the right hand side. We have to prove that the left hand side is equal to the right hand side. We have to prove that the left hand side is equal to the right hand side. So we will Okay, sir. simplify the left hand side. We will take the left hand side, we will write LHS. LHS means left hand side. What is the left hand side? 2x plus 3x plus 5 into 2x minus 3. 2x minus 3. We will open it. First of all, we'll simplify the bracket. 2x plus 3x. Bracket cannot be further simplified. 2x minus 3 cannot be further simplified. So it will be opened as it is. So 5, between 5 and this bracket, there is no sign. It means it is being multiplied. When there is no sign between this number, this term, and this expression, this bracket, there is no sign in between them. Therefore, we will multiply this one. So 5 into 2x will be 10x. And plus minus 5 into 3 will be 15. Minus 15x. Minus 15 only, not 15x. Minus 15. 5 into 3 is 15. Plus into minus will be minus. Remember, when two different signs are multiplied, answer always be minus. When two different signs are divided, answer always be minus. In division and multiplication, when two different signs are multiplied or divided, the answer will be minus. If two same signs are being multiplied or divided, answer will be positive. Both may be negative. Minus 5 into minus 3 will be plus 15. Plus 5 and plus 3 will be plus 15. When the two same signs are being multiplied, answer always be same. Answer always be positive. That means plus. And if two different signs, the opposite signs are being multiplied, answer always be minus. The same rule is applied in multiplication and division, not addition and subtraction. This rule is applied in the multiplication and division. When the same signs are being multiplied or divided, answer always be positive. When two opposite signs are being multiplied or divided, answer always be negative. Now this is 10x. Now what is the answer? 2x plus 3x plus 10x will be 15x. Minus 15. It cannot be further simplified. It cannot be further simplified. This is the answer. यहाँ of the- कॉमन लेंगे सर, यहाँ कॉमन लेंगे ना? नहीं कॉमन वामन नहीं ले रहे हम तो सिर्फ सर आपको कॉमन ले तो सर सकते हैं तो सर वो राइट हैंड साइड कैसे बेटा, आएगी? मुझे करने दोगे तो मैं बताऊंगा ना, या तुम ही पहले कर लो। चलो मैं खामोश हो जा रहा हूं, तुम कर लो। मैंने खत्म कर दिए क्या क्वेश्चन? नहीं किया ना?
तो बेटा करने दिया करो, बीच में मत फंसा। जब मैं कंप्लीट कर लूं कहूं कि अब हो गया क्वेश्चन, तो फिर आप पूछ ले मुझसे। वही सर। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया 15x माइनस 15। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। वी विल टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 15 इंटू x minus 1. First of all, we will simplify the bracket. X minus 1 cannot be further simplified. It cannot be further simplified. Now we will open the bracket. So there is no sign in between 15 and the bracket. It means it is being multiplied. When there is no sign between the bracket and this number, this term, so it means it will multiply. 15 into x will be 15x. Plus into minus, when there is no sign, it means plus. Plus into minus will be minus. 15 into 1 will be 15. Now you may check both answers. The answer of the left hand side is 15x minus 15. The answer of the right hand side is also 15x minus 15. Both are the same sign. Therefore, left hand side is equal to the right hand side. Therefore, this is the symbol for the therefore. 2 dots down and 1 dot up. 2 dot down and 1 dot up. This is the symbol for the therefore. बट सर हम Therefore- कॉमन क्यों नहीं ले रहे इसमें? नहीं बेटा, कॉमन तो हम सिखा ही नहीं रहे ना। कॉमन से हमारा मकसद ही कुछ नहीं है। हमने तो राइट और लेफ्ट को ही प्रूव करना है। हमको फैक्टराइजेशन नहीं हम आपको बता रहे, फैक्टर्स बनाना नहीं बता रहे। जब फैक्टर बनाने वाली yes, sir. बात होगी तब हम माइनस वो कॉमन लेकर फैक्टर बनाएंगे ना। हम तो सिंपल सी जी, चीज sir. बता रहे हैं, सिंपल सी चीज और बता ये- रहे हैं। तो ये जो ओके राइट हैंड सर, साइड थैंक यू। एक्स नहीं होता, नंबर होता, तो ये अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई तो नहीं होता, राइट? फिर So this is the Right answer. hand We side. have to simplify. Right hand side is equal to left hand side. So we have to prove. So we have already proved 15x. The answer of the left hand side is 15x minus 15. The answer of the right hand side 15x minus 15. So both are equal. Therefore, left hand side is equal to the right hand side. ओके सर। सर बट ये जो राइट हैंड साइड पे 15 है और ब्रैकेट में x माइनस 1 है, तो ये x के जहाँ x के जगह पर ये कोई नंबर होता तो ये डायरेक्ट ब्रैकेट में तो पहले अब नंबर होता तो पहले सॉल्व कर लेता ना, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते ना बेटा। फर्स्ट करो या फिर Okay. 4 होता, 4 माइनस 1 पहले तो सिंप्लीफाई है। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ओपन करेंगे। First of all, we will simplify what is inside the bracket. If it is not being simplified, we will open the bracket. Opening जो है, that is the second step. First step is to simplify the bracket. What is inside the bracket, we have to simplify. और सर अगर लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ गया तो फिर राइट हैंड साइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वही आंसर जो राइट हैंड साइड में मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया, वही आंसर आ गया, तो फिर हमें करने की राइट हैंड को करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर Okay, sir. डायरेक्ट Thank आंसर आ गया, यहाँ ओपन होता, ये ब्रैकेट ना होता, ये लिखा होता 15x minus 15. So that means this is equal to this one. There is no need to simplify this one. Already ये 15x minus 15 लिखा हुआ है। और सर हैंस प्रूफ आएगा आगे? जी सर now we will do the next question. अभी आपका सेशन सर खत्म होने वाला है। सर दोबारा सेशन ज्वाइन करना है? हाँ, दोबारा नहीं, अब दोबारा अब तो सेशन खत्म होने वाला है। सेशन खत्म होने वाला है। सर ये बताएंगे कि बचपन में हमें पढ़ाया गया था वो ऑफ जो था बी के बाद जो ओ था उसका मतलब वो बताया गया था ओपन। आपने नहीं सर बेटा। ऑफ ऑफ का Open. मतलब ऑफ होता है, ऑफ लिखा हुआ होता है। बचपन में इतना हार्ड हाँ। लगता था। ये आप देख लें, बाद बुक्स में, छोटी क्लासेस की बुक्स में होती हैं ये चीजें।